Hi everybody, welcome to EduTap and welcome to the video. So students, NABARD grade A examination में जब हम देखते हैं there are a lot of subject that we have to cover. आपके phase 1 में there are 8 subjects जिसमें कि कुछ नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट होते हैं, कुछ मेरिट सेक्शन का पार्ट होते हैं. मेरिट सेक्शन में भी आपको स्टैटिक और करंट दोनों कवर करना होता है. When we talk about phase 2 में descriptive answer writing is the biggest challenge, right? So when we talk about the preparation of NABARD grade A examination in general, it's not a very easy preparation. आपको बहुत सारे subject पढ़ने होते हैं and you have to cover these subject as per the exam requirement, right? तो कभी कभी क्या होता है कि इट कैन फील ओवरवेल्म. काफी सारे बच्चे जो अभी NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है कि इतने सारे सब्जेक्ट कैसे कवर होंगे. बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स वन थिंग कि NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट्स बहुत सारे टेस्ट होते हैं. बट अगर आपको एग्जैक्टली पता है कौन से सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक एग्जैक्टली करने हैं, देन इट कैन बी अ वेरी इजी प्रिपरेशन फॉर यू. आपकी स्ट्रैटेजी अगर सही है एंड यू नो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, देन इट कैन बी अ वेरी इजी प्रिपरेशन एंड आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट पे फोकस करके मैक्सिमम अपनी प्रिपरेशन का बेनिफिट ले सकते हो. सो अब वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द 5 cheat codes. Basically this will be not called completely cheat codes but a right strategy to cover some important areas of NABARD grade A examination so that you can effectively prepare. Okay, you can only focus on the important part, prepare effectively, have right strategy and ultimately can prepare in an effective way for NABARD grade A 2026 examination. So that is the agenda of today's video. But before I start, I would like to tell you about our 2-day demo course. If you're interested in our main course, if you want to purchase our main course and you wanted to see कि क्या content हम दे रहे हैं, किस तरीके से content covered है, you can go and check our demo course first. This is just for 1 rupees. 1 रुपए में आपको 2 दिन के लिए डेमो कोर्स एक्सेस मिल जाएगा जिसमें आप सब कुछ देख सकते हैं. देयर इज नथिंग डाउनलोडेबल बट यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग. You can decide accordingly and then you can prepare with us, right? And you can take our main course. So with that, let's move ahead to the today's topic and let me tell you what are those 5 cheat codes that we are going to discuss, or I would say what are those 5 strategy tips that you can take for your 2026 examination preparation for NABARD grade A, right? Chalo, first will be about the non-merit section. We'll see how to smartly prepare non-merit section because non-merit section में आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है एंड दिस सेक्शनल कट ऑफ या मार्क्स दैट यू स्कोर इन नॉन मेरिट सेक्शन इज नॉट काउंटेड फॉर द फाइनल कट ऑफ. तो इसको स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करें, किन एरियाज पे एग्जैक्टली फोकस करें ताकि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए और कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से नॉन मेरिट सेक्शन को कवर कर सको. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ARD स्टैटिक पार्ट. अगेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NABARD grade A examination are not from agriculture background or they haven't read agriculture or science or botany biology before. They are from the maths background. They can be from the maths background. So ARD static थोड़ा सा challenging हो जाता है. So how do we smartly prepare this subject? That is what I am going to tell you. Then what is your right strategy for current affair? Current affair is a very I would say biggest challenge of this examination. बहुत vast है, बहुत different type का current affair हमें पढ़ना पड़ता है. बट एग्जैक्टली किस तरीके के करंट अफेयर को आपको फोकस करना है ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ इस एग्जामिनेशन के लिए. देन ESI स्टैटिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इसे करना है नहीं करना है तो इसमें से कौन से टॉपिक्स करने हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट. एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द phase 2 आंसर राइटिंग कि किस तरीके से आप इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर द आंसर राइटिंग ऑफ phase 2 ऑफ NABARD grade A exam, right? So these are 5 cheat codes that we'll be discussing in detail. So let's take them one by one. First, let's talk about cheat code 1, which is about the non-merit section. So basically we have to filter out here what is important for the non-merit section and what is not. So देखो, again, non-merit section is basically that section where you have to just clear the sectional cutoff. तो आपको सिर्फ और सिर्फ sectional cutoff clear करनी है. इसमें अब अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सब कुछ पढ़ने बैठोगे, so you will be wasting your energy, wasting your time covering each and every topic जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हो सकता है कि आपने 10 टॉपिक कवर किए हैं क्वांट्स के, बट एग्जाम में सिर्फ 5 टॉपिक से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो आपके जो 5 टॉपिक का टाइम
और एनर्जी आपने लगाया है दैट इज वेस्टेड। सो नॉन मेरिट सेक्शन में प्लीज ये चीज आप ध्यान रखिए कि नॉन मेरिट सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखो स्टूडेंट्स, 10 टॉपिक प्रैक्टिस करने से बजाय आप 5 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, सो दैट इफ देर इज एनी क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन फ्रॉम दोज 5 टॉपिक्स यू आर नॉट मिसिंग इट और यू आर अटेम्प्टिंग इट एक्यूरेटली। अगर क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में आप एक्यूरेटली उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सको, राइट। और अगर स्टूडेंट्स हम कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो नॉन मेरिट सेक्शन की कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाती है, और 2025 में तो बहुत ही कम कट ऑफ गई है। क्वांट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इन तीनों की कट ऑफ वाज 1। तो आप देख सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्टली प्रिपेयर करने की जरूरत है। आप सिर्फ कुछ टॉपिक्स को क्लियर कवर करके भी इस एग्जामिनेशन को, इस नॉन मेरिट सेक्शन को क्लियर कर सकते हो इजीली। स्पेशली जो बच्चे जिनको डर लगता है क्वांट और रीजनिंग से, प्लीज डू नॉट फेयर है इस एग्जामिनेशन के लिए। क्वांट रीजनिंग से डरने की जरूरत नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। अगर आप सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें देन यू कैन इफेक्टिवली कवर योर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश and computer knowledge and decision making. So let me tell you exactly what topics you have to cover. First, if I talk about quantitative aptitude, so आपने फोकस करना है इन टॉपिक्स में, ठीक है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस नंबर सीरीज, DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो DI एक ऐसा टॉपिक है, अगर DI से क्वेश्चन आता है सो एक DI से आपके 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर आप एक DI सॉल्व कर लेते हो तो आपके 3-4 नंबर इजीली हो जाएंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने सिर्फ DI और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर लिया और इनके क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए, सेक्शनल कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगी, आपको और टॉपिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। बट स्टिल आई डू नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज क्योंकि कभी कभी हो सकता है एग्जामिनेशन में DI डिफिकल्ट आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ईजी हो, एक डिफिकल्ट हो जाए। सो एटलीस्ट 5 to 6 टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं, जिसमें कि नंबर सीरीज, DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, वर्ड प्रॉब्लम, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम वर्क, एज एंड पार्टनरशिप, ये आप कर सकते हो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकते हैं एंड आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली क्लियर योर सेक्शनल कट ऑफ। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। सो रीजनिंग के टॉपिक्स है सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शंस एंड इनपुट आउटपुट, राइट। कमिंग टू थर्ड दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में आपको करना है सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवांस वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैरल जंबल, ठीक है। सो अगर आप इन कुछ टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हो, अगेन यू कैन इजीली क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। कमिंग टू कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग की भी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, बट स्टिल स्टूडेंट वी हैव टू कवर इट। कभी कभी क्या होता है कि वी टेंड टू ओवरलुक दी सब्जेक्ट कि यार बहुत ईजी है, देख लेंगे, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है, सारे नॉन मेरिट सेक्शन में क्लियर कट ऑफ क्लियर है, डिसीजन मेकिंग की कट ऑफ क्लियर नहीं है या कंप्यूटर की कट ऑफ क्लियर नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम बिल्कुल ही इनको इग्नोर नहीं करेंगे, रादर वी विल फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि कंप्यूटर अवेयरनेस में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, MS ऑफिस एंड कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग के बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस, फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग, ये कुछ टॉपिक्स अगर आपने ये कर लिए तो आप इजीली नॉन मेरिट सेक्शन की कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। अब नॉन मेरिट सेक्शन की बात हो गई, अब आई होप आपको ये समझ आ गया है कि हाउ कैन यू स्मार्टली प्रिपेयर योर नॉन मेरिट सेक्शन, कम समय में अच्छे से नॉन मेरिट सेक्शन की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, एंड इन टॉपिक से ही आपकी सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ओके, मूविंग अहेड टू चीट कोड 2 विच इज अबाउट स्मार्टली प्रिपेयरिंग ARD। सो स्टूडेंट, जब हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वी हैव the whole syllabus. So NABARD has given you the complete syllabus of ARD in the notification. Now when we look at that syllabus, it is quite overwhelming to see that because there are a lot of topics and the syllabus is quite vast and huge to be covered, right? तो इससे क्या होता है, काफ़ी बच्चे demotivated हो जाते हैं कि मे बी हम इसको नहीं कर सकते यार, इसमें इतना पढ़ना है, एग्रीकल्चर इतनी इन डेप्थ में पूछी जा रही है, इतना तो हम नहीं कवर कर सकते, या बहुत सब कुछ है कवर करने के लिए, राइट। I totally understand. It can be overwhelming at first अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हो,
बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, अगर आप उस पूरे सिलेबस को अच्छे से देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में के एनालिसिस से ये पता चलता है कि देर आर फ्यू टॉपिक्स, अगर आप उनको अच्छे से कर लो, आप डिसेंट स्कोर कर सकते हो एआरडी में, राइट। सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, आप ईएसआई में कॉन्फिडेंट हो, आप जीए में कॉन्फिडेंट हो अपने मेरिट सेक्शन को लेके, और एग्रीकल्चर में आपको अराउंड 20 to 22 स्कोर करना है to clear the sectional cutoff or to clear the sectional as well as the overall cutoff, तो उसके लिए देर आर फ्यू टॉपिक्स जो आप अच्छे से कवर कर सकते हो, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्वेश्चंस आने की। तो आपको सारा सिलेबस नहीं करना है, अगर आपको सारा सिलेबस करने का टाइम नहीं है, या फिर आपको लगता है कि यू विल नॉट बी एबल टू कवर एंटायर सिलेबस टिल योर एग्जामिनेशन, प्लीज एटलीस्ट ट्राई टू कवर दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके 20 से लेके 23 क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, एंड यू कैन कॉम्प्लीमेंट इट विद योर ईएसआई स्कोर एंड जीए स्कोर, और आपकी टोटल कट ऑफ क्लियर हो सकती है। क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें आपने फोकस करना है? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज एग्रोनॉमी, राइट। आपका जो सिलेबस है स्टार्टिंग में ही जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, थिंग्स लाइक दैट। सो ये सब एग्रोनॉमी का पार्ट है, राइट। तो एग्रोनॉमी आपने पहले कवर करनी है। देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, लेट मी टेल यू, एग्रोनॉमी से 2 to 3 क्वेश्चंस आर देयर इन योर एग्जामिनेशन। कमिंग टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चंस सॉइल एंड कंजर्वेशन से रहते हैं। फार्मिंग सिस्टम इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, ये आपने कवर करना है। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस रह सकते हैं एग्जामिनेशन में। इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, 1 to 2 क्वेश्चंस कैन बी देयर। सीड एंड सोइंग इज इंपॉर्टेंट। एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि सॉइल में आपके 4 to 5 क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री में भी आपके 4 to 5 क्वेश्चन रहते हैं। सो यू कैन सी सॉइल एंड एनिमल हस्बेंड्री से ही आपके 7 to 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड यू कैन इजिली डू देम इफ यू कवर दीज 2 chapters thoroughly and in a good way, right? Then coming to plantation and horticulture crops, so students यहाँ से भी क्वेश्चंस रहते हैं, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस आपके प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप से भी रहते हैं। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अब इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से एक क्वेश्चन रहता है, राइट। एंड आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी पूछा गया था, तो इसीलिए हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को भी इंक्लूड करेंगे। फॉरेस्ट्री से डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पूछा जाता है, फॉरेस्ट्री से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई वी विल बी इंक्लूडिंग दिस चैप्टर आल्सो इन द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स है जहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड आर मोर एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स। अब जो रेस्ट टॉपिक्स है उनको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको फोकस करना है सिर्फ इन टॉपिक्स पे कि ये आपके अच्छे से कवर हो जाए, और इनसे जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ, राइट। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा जो अब टॉपिक्स बचे हैं उनको इफ पॉसिबल यू हैव टू जस्ट गिव देम 1 रीडिंग, कि आप एक बार उनको पढ़ लो, या तो आप किसी बुक से पढ़ो या किसी वेबसाइट से पढ़ो, जितने भी टॉपिक्स हैं एक बार रीडिंग अगर दे सकते हो, इफ पॉसिबल डू इट। अदरवाइज नहीं पॉसिबल है तो प्लीज फोकस ऑन दीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड ट्राई टू कवर देम थरली। आपके इजीली 20+ क्वेश्चंस बन जाएंगे फ्रॉम हियर, एंड रेस्ट यू कैन स्कोर इन योर ESI and GA पार्ट, राइट। So this is how you smartly prepare ARD for the NABARD grade A examination. Coming to the cheat code 3, which is related to current affair. अब current affair जो कि बहुत vast है, जिसमें हमें ARD current affair पढ़ना है, we have to cover ESI current affair, also we have to cover GA which is of 20 marks and is a separate section of your merit section, right? तो अब इन सब करंट अफेयर को अच्छे से कैसे कवर करें, क्योंकि जब हम करंट अफेयर पढ़ने जाते हैं तो काफ़ी ओवरवेल्म हो जाते हैं कि वी हैव टू सी कि ESI से रिलेटेड न्यूज़ कौन सी है, ESI से रिलेटेड स्कीम्स कैसी हैं, सिमिलरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ है, या ARD से रिलेटेड कौन सी स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं, GA में किस तरीके का करंट अफेयर कवर करना है, राइट। सो लेट मी टेल यू हाउ टू एंड व्हाट टू कवर एग्जैक्टली इन द करंट अफेयर पार्ट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ARD करंट अफेयर, ठीक है। ARD करंट अफेयर में देखो, ARD और ESI करंट अफेयर में 3 चीजें होती है, आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जो आपको पढ़नी है, रिपोर्ट्स एंड ARD रिलेटेड इनिशिएटिव। तो बात ये है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में जितनी भी स्कीम्स न्यूज में हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि आप अल्टीमेटली नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो। नाबार्ड इज अ रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो जितनी भी स्कीम्स पॉलिसीज होती हैं नाबार्ड लुक आफ्टर दैट, राइट। सो गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है जितनी भी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सिमिलरली रिपोर्ट्स एंड सिमिलरली और जो आपके इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, राइट। तो
किस तरीके की स्कीम्स, लाइक स्टूडेंट्स हियर आई हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ स्कीम्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो आप अच्छे से कर सकते हो। तो स्कीम्स जो रिलेटेड होती हैं एग्रीकल्चर से, प्रोडक्शन से, क्रेडिट एंड स्टोरेज, रूरल डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, राइट, दे आर इंपॉर्टेंट। अब स्कीम्स में करना कवर क्या क्या होता है, कौन सी मिनिस्ट्री ने स्कीम लॉन्च की है, लॉन्च ईयर क्या है, फंडिंग क्या है, बजट एलोकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव, टारगेट बेनिफिशियरी, स्टेट अगर ये स्टेट की स्कीम है, और करंट डेवलपमेंट क्या है उस स्कीम का जिस वजह से वो स्कीम न्यूज में है, राइट। यू हैव टू कवर ऑल दोस थिंग्स रिलेटेड टू स्कीम। कमिंग टू द रिपोर्ट्स, तो कुछ रिपोर्ट जैसे कि सेंसेस होते हैं, एग्रीकल्चर सेंसेस, लाइफ स्टॉक सेंसेस, हैंडलूम सेंसेस, अगर ये अपडेटेड वर्जन आपको मिलता है यू हैव टू कवर इट, राइट। MSP, लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, राइट। एनुअल रिपोर्ट ऑफ नाबार्ड, रेलेवेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है वहां से भी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन अदर काइंड ऑफ करंट अफेयर लाइक फर्स्ट इन एग्रीकल्चर या MOU रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कोई मीटिंग हुई है, कोई पोर्टल रिलीज हुआ है फॉर द फार्मर्स एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट यू हैव टू डू। और स्टूडेंट्स रिपोर्ट आपको कैसी करनी है कि रिपोर्ट जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ऐसा नहीं कि सारी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट शुड बी रिलेटेड टू योर सिलेबस, मीन्स रिपोर्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, या तो वो रिपोर्ट किसी इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी ने रिलीज करी होनी चाहिए। और आपको रिपोर्ट में सारी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, यू हैव टू जस्ट रीड द समरी ऑफ द रिपोर्ट और द एग्जीक्यूटिव समरी दैट इज प्रोवाइडेड इन द फ्रंट पेज ऑफ द रिपोर्ट, उतना ही करना है कि इंपॉर्टेंट डेटा कवर करना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू डू, राइट। सो दिस इज हाउ यू कवर योर ARD करंट अफेयर। सोर्सेज क्या होने चाहिए, तो PIB इज योर वन एंड मेन सोर्स। तो PIB में जो भी पब्लिश हो रहा है प्लीज लुक आफ्टर दैट, आप उसको रोज विजिट कीजिए, देखो कि क्या पब्लिश हो रहा है, कौन सी स्कीम PIB में मेंशन्ड है, क्योंकि चांसेस हैं PIB से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो PIB शुड बी योर वन प्राइम सोर्स। उसके अलावा आप कृषि जागरण या जो अगर आपको रिपोर्ट्स कवर करनी है तो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, प्लस आप न्यूज़पेपर से भी ARD करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, राइट। सो ऑल दिस कैन बी योर सोर्सेज फॉर ARD करंट अफेयर। सिमिलरली अब ESI की बात करते हैं, तो ESI करंट अफेयर में भी हमें सेम स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड ESI रिलेटेड इनिशिएटिव कवर करने होते हैं। अब स्कीम्स में सोशल इश्यूज, पॉवर्टी एलिवेशन, जेंडर इक्वालिटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, प्रोडक्शन, MSME, इनसे रिलेटेड स्कीम्स आपने करनी है। सेम चीज आप यहाँ पे भी कवर करोगे, राइट। रिपोर्ट जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसस, SECC और रिपोर्ट बाय नेशनल बॉडीज लाइक RBI, नीति आयोग, ठीक है। तो कोई इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल बॉडी की रिपोर्ट रिलीज हो रही है जिसमें इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड कोई डेटा पब्लिश है, वो आपने करना है। करंट अफेयर और काइंड ऑफ करंट अफेयर जैसे कि ग्रोथ प्रोजेक्शन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, रेपो रेट, सोशल इश्यूज, एनवायरमेंट इश्यूज से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है तो दैट यू हैव टू कवर, राइट। हियर आई हैव गिवन द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज जो आपको कवर करने हैं, राइट। सो इसके भी सोर्सेज रहेंगे आपके PIB, रिस्पेक्टिव वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, कोई अगर रिपोर्ट रिलीज होती है, न्यूज़पेपर एंड विकासपीडिया, ठीक है। तो बट PIB शुड योर मेन सोर्स। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं प्लीज फोकस मोर ऑन PIB, right? So it has been told to us by the student who have cleared the examination कि जो आपका 60-70% पेपर है वो PIB से कवर हो जाता है, तो PIB should be your prime source if you are doing the self preparation. अगर आपके पास कोर्स है then you can definitely go for the magazine that is provided in the course. अब GA की बात करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स GA में क्या होता है कि GA में स्टैटिक GA होता है एंड करंट GA होता है। व्हाट इज स्टैटिक एंड करंट GA? करंट GA इज बेसिकली दैट इज द न्यूज दैट इज देयर इन मीन्स जो न्यूज आपकी न्यूज़पेपर में छपी है वो करंट GA होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इवेंट हो रहा है, राइट, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है तो उस स्पोर्ट्स इवेंट के रिलेटेड जो भी करंट डेवलपमेंट है वो न्यूज़पेपर में आता है, दैट इज करंट GA। बट अगर ये पूछा गया कि ये स्पोर्ट्स कब स्टार्ट हुआ था या फर्स्ट टाइम ये स्पोर्ट कहाँ खेला गया था, दैट बिकम्स अ स्टैटिक GA, ठीक है। तो एग्जाम में चांसेस है कि आपको 3 से 5 मार्क्स के स्टैटिक GA के क्वेश्चंस मिले और 17 to 15 मार्क्स के आपके करंट GA के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। बट जो ये स्टैटिक GA का कंसेप्ट है या स्टैटिक GA के क्वेश्चंस होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके जो न्यूज़ करंट GA में है उससे रिलेटेड ही होगा, राइट। तो स्टैटिक में आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एयरपोर्ट्स, डैम्स, आर्कियोलॉजिकल साइट, रीजनल फेस्टिवल, थिंग्स लाइक दैट, दीज थिंग्स कैन कम। और इसमें आपको सिर्फ वो चीज़ देखनी है जो न्यूज़ में है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है कोशिश करो कि उसका स्टैटिक पार्ट भी आप कवर करो, राइट। नाउ कमिंग टू द करंट GA। करंट GA तो देखो स्टूडेंट्स जो आप पढ़ोगे, स्पोर्ट्स, कोई ऑथर न्यूज़ में है, कोई बुक पब्लिश हुई है,
कोई इवेंट हुआ है, राइट, थिंग्स लाइक दैट इज द पार्ट ऑफ करंट जीए। अब इसमें एक और चीज आती है स्टूडेंट्स की फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज डू रीड वंस वट एवर is there with related to finance and the current affair, because in 2024 जो पैटर्न था एग्जामिनेशन वो चेंज हो गया था, काफी सारे क्वेश्चंस फाइनेंस करंट अफेयर के थे, राइट। दो 2025 में अगेन द पैटर्न चेंज और काफी बैलेंस्ड पेपर था, बट फिर भी आपको इग्नोर नहीं करना है, 1 से 2 क्वेश्चन फाइनेंस रिलेटेड जीए से भी पूछे जाते हैं, तो दैट यू हैव टू कवर, राइट। अगेन फॉर कवरिंग द स्टैटिक जीए आप ल्यूसेंट की बुक से कवर कर सकते हैं, अदरवाइज पीआईबी न्यूज़पेपर इज सफिशिएंट, और जो पीआईबी न्यूज़पेपर में जी है उसी का ही आप स्टैटिक पोर्शन थोड़ा बहुत कवर कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू डू। ओके, अब करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि टाइमलाइन कौन सी फॉलो करनी है। तो टाइमलाइन स्टूडेंट्स जो आपकी स्कीम्स के लिए रहेगी ईएसआई और ईआरडी के लिए, दैट विल बी 6 मंथ्स, रिपोर्ट्स के लिए 3 to 4 months, एआरडी रिपोर्ट्स के लिए ओनली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स दैट आर रिलीज यू हैव टू कवर दोज। फॉर ईएसआई करंट अफेयर 3 to 4 months, एआरडी करंट अफेयर और जीए के लिए आपको 3 months आपको कवर करना है, राइट। सो दिस इज योर टाइमलाइन, आपके एग्जाम से पहले इतने महीने का आपने स्कीम्स, रिपोर्ट या करंट अफेयर कवर करना है, राइट। So this was about the cheat code 3. Now let's move ahead and talk about cheat code 4. ठीक है, अब आई होप करंट अफेयर से रिलेटेड भी सब डाउट क्लियर है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। चीट कोड 4 इज अबाउट द ईएसआई, ठीक है। अब ईएसआई स्टैटिक की जब बात करते हैं, देखो ईएसआई स्टैटिक के लिए व्हेन यू आस्क कि मैम क्या ईएसआई स्टैटिक कवर करना है या नहीं करना है, सो देयर इज अ कंडीशन। अगर आपने पहले प्रिपरेशन की है या आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, then there is no need to cover ESI static separately for NABARD grade A examination, क्योंकि ESI static से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, राइट। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ESI करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द चीट कोड 3। बट अगर आप ESI या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो, इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी है, तो आप फिर कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हो ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में हेल्प हो सके, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए ESI स्टैटिक की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो जैसे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रूरल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन्फ्लेशन, डेमोग्राफिक ट्रेंड, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया, मल्टीकल्चरलिज्म, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, and you can understand these topic, what are these topic, what are the concerns related to these topics, so that if there is any question related to these topic in descriptive answer writing, you can easily write easily write answers based on these topics. इस तरीके से आपने ESI स्टैटिक को केटर करना है। बट अगर आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो या फिर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो फेज 1 के लिए देयर इज नो सेपरेट रिक्वायरमेंट ऑफ रीडिंग ESI स्टैटिक। आप फेज 1 के लिए ESI स्टैटिक कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। Only you'll have to read ESI static for phase 2, wherein you have to write answers based on the ESI static topic, right? So that is about the ESI static. Now coming to 5, cheat code 5, which is related to descriptive answer writing. तो अब descriptive answer writing की जब हम बात करते हैं, तो we have to practice essay writing in descriptive English, précis writing, letter writing and report writing for English part, and answer writing for ESI and ARD, right? So this is your descriptive answer writing paper. Paper 1 is of English, paper 2 50% is of ESI ARD descriptive answer writing. तो अब ये descriptive answer writing की प्रैक्टिस कैसे करनी है इफेक्टिवली और स्मार्टली, सो दैट आप बेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो एंड आपको जो स्कोर है एग्जामिनेशन में वो मैक्सिमम हो सके। सो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि आपका जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है बट इट इज नॉट सुप्रीम। दैट मीन्स वट एवर यू आर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट द अल्टीमेट थिंग दैट विल डिसाइड what marks you are getting in that answer. There will be few things that will be taken care, like how many spelling and grammatical errors you have committed, right? What is your typing speed? Very important, because you have to meet the word limit. Word limit meet करने के लिए you have to be good in your typing speed. अगर आप जितनी जल्दी टाइप करोगे, you will have sufficient time to review the answer. Okay, you will have sufficient time to write another answer. अगर टाइपिंग स्पीड कम होगी तो उस टाइम जितना लिमिटेड टाइम है उसमें आप आंसर कंप्लीट ना कर सको, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो योर टाइपिंग स्पीड विल मैटर। आप वर्ड लिमिट पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अगेन थिंग। आपने कितने एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट्स या ट्रेंड्स कोट किए हैं, बिकॉज दैट इनरिचेज एन आंसर। कि आपने कंटेंट तो लिख दिया बट उसके रिगार्डिंग आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं या नहीं, डेटा ऐड किया है या नहीं,
वो वो चीज़ें देखी जाती हैं, आपका कितना स्ट्रक्चर्ड आंसर है, क्या आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एक प्रॉपर वे स्ट्रक्चर फॉलो किया है या नहीं किया है, राइट। देन यू हैव टू प्रैक्टिस इन एग्जाम इंटरफेस लाइक स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए ध्यान रखनी है। तो जब हम एग्जाम लाइक इंटरफेस की बात करते हैं तो इसको कैसे करना है, ठीक है। देखो, आप स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एरर इज समथिंग दैट यू विल हैव टू वर्क, ठीक है। आप टाइपिंग स्पीड पे भी वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, राइट। वर्ड लिमिट मीट हो रही है नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। हाउ टू ऐड एग्जाम्पल, डेटा, ट्रेंड, फैक्ट्स, अगैन ये आपको प्रैक्टिस करना है। स्ट्रक्चर में आंसर लिखना, अगैन आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, आप पे डिपेंड करती है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एंड यू हैव टू कीप दीज थिंग इन माइंड वाइल प्रैक्टिसिंग योर आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, राइट। बट what does that mean कि हमें एग्जाम लाइक इंटरफेस पे प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट यू नीड टू डू इज, ये आपकी अगर लैपटॉप की स्क्रीन है या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन है तो आपने नोट पैड ऐप यूज करना है, जिसको आपने 1/4 ऑफ स्क्रीन साइज कर देना है, रीसाइज कर देना। तो रीसाइज योर नोट पैड ऐप टू 1/4 ऑफ द साइज ऑफ योर एंटायर डेस्कटॉप स्क्रीन, राइट। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। हियर यू हैव टू टाइप योर आंसर. Do make sure that you are not using any kind of app like Grammarly, which will highlight your errors, right? So do not use any app for auto correction or for highlighting your errors. Just type your answer here, and after that you can use any app or AI tool to evaluate your answer, right? So this should be your interface. एंड स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो कीबोर्ड्स यूज होते हैं, दे आर नॉट द कीबोर्ड्स जो हमारे पास अभी अवेलेबल है. वी हैव द रीसेंट टाइप ऑफ कीबोर्ड या मॉडर्न टाइप ऑफ कीबोर्ड, बट एग्जाम में अभी भी एग्जाम सेंटर में जो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट दैट मच डेवलप्ड, ठीक है. अभी भी कीबोर्ड्स जो है वो पुराने कीबोर्ड्स यूज हो रहे हैं. तो कोशिश करना है कि अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो ट्राई टू कनेक्ट अ कीबोर्ड. इस तरीके का एक कीबोर्ड ले लीजिए, इस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो, बिकॉज बहुत डिफरेंस आता है. आजकल जो कीबोर्ड हमारे पास है वहाँ उसमें प्रैक्टिस करना या टाइप करना ईजी हो जाता है, और जब हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइप इन दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड. सो ट्राई टू ऐड दिस कीबोर्ड. इफ अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है, दैट्स वेल एंड गुड, इसी कीबोर्ड में प्रैक्टिस करना है. बट अगर आपके पास ये कीबोर्ड नहीं है, आप लैपटॉप से टाइपिंग कर रहे हो या फिर आपके पास टैबलेट है और आप उसके साथ कोई कीबोर्ड अटैच कर रहे हो, तो दिस शुड बी योर कीबोर्ड, ठीक है. क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली ये कीबोर्ड रहता है, और इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है. क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है बट आपने प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे कीबोर्ड पे की है, एग्जाम में अगर कीबोर्ड ये वाला होगा, देन अगैन यू कैन फील दैट फ्रिक्शन. तो वो नहीं होना चाहिए, राइट. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पहले से ही एग्जाम लाइक इंटरफेस पे प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जामिनेशन में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो. Clear? So students, these are your 5 cheat codes that you should keep in mind while practicing or preparing for NABARD Grade 2026 examination. And with this, I hope you have got the clarity कि smartly कैसे और किस जगह पे focus करना है for your entire examination. So students, again, before ending this video, I would like to tell you about our demo course. So कैसे आप इस demo course को access कर सकते हैं, I'll show you that. So what you need to do is, you'll have to go to our website, just go to the courses, click on NABARD Grade A course and scroll down, okay. So when you will scroll down, you will see that there is a 2-day demo course. So you can just buy now, and it is just for 1 rupees. And for 2 days, you can see what content we are providing. And if you decide to purchase our course, so then we have 2 courses, gold course, which provide you the content for phase 1, phase 2 and interview. And then we have a silver course. If you feel like I do not want any content for non-merit section, then for the merit section of phase 1, phase 2 and interview, you can have our silver course, right? Chalo. With that, we'll end the video, and I hope it had helped you. Thank you so much. Whatever your feedbacks are there, you can just comment down in the comment section, and anything you want to किसी भी topic में अगर आपको video चाहिए, you can also comment down that. Thank you so much.